Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our chapter 7 parts of plants. Right? So, before we continue, let's have quick revision of previous video. So, in previous video we have learnt about parts of plants and their uses, right? So, first of all, a plant has two main parts, that is the root and the shoot. So, the part above the ground is called shoot. It consists of the stem, leaves, buds, flowers, and fruits. Right? We called it shoot. And the part below the ground is called the root. This is root. Now see, root, we have learnt about root. What is root? Root is the part of the plant that usually grows below the ground, right? There are two main types of roots, tap roots and fibrous root. See, this is so easy that root is the part of the plant that usually grows below the ground, right? And there are two main types of roots, tap roots and fibrous root. What is tap root? It consists of main, right? Thick root from which small roots grow. इट इज़ अ थिक रूट जहाँ से स्मॉल रूट्स है वो ग्रोन अप होना स्टार्ट करते हैं राइट सो प्लांट्स सच एज बीन मस्टर्ड एंड हिबिस्कस हैव टैप रूट्स राइट फिर है फाइबर्स रूट तो व्हाट इज़ फाइबर्स रूट इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थीन रूट्स दैट अपीयर बूजी देर इज़ नो मेन रूट सिर्फ यही फाइबर सीड दिखते हैं आपको राइट Plants such as grass, wheat and onion have fibrous root, right? Now functions of the root. Some of the main functions of root are given below. It helps the plant stay fixed in the soil. It takes in water and minerals from the soil which are used by the plants for making food. And third function is some plants store extra food in their roots, right? Some of these roots such as radish, tupin, beetroot and carrot can be eaten by human beings. So these in previous video we have learnt about root, right? Root is a part of the plant which is grown up below the ground, right? Now we will learn about shoot कि shoot के जितने भी पार्ट है उसके बारे में हम सीखेंगे okay so before we start and before we continue let's learn some more hard words so open your fair notebook and write down with me write down 8 के बाद सीधा 9th लिखना ओके अगर बीच में आपको नोट डाउन करनी है डेट तो यू कैन नोट डाउन द डेट बट नो न्यू पेज राइट डाउन फ्रॉम दैट सेम पेज जहाँ पे आपने छोड़ा था राइट सो 9th वन इज ट्रंक TRUNK ट्रंक जो थर्ड होता है ना बड़ा सा मोटा सा जो स्टेम होता है उसे ट्रंक बोलते हैं स्ट्रेट यानी सीधा अपराइट यानी ऊपर की तरफ राइट लीफ ब्लेड यानी जो लीफ की ब्लेड होती है जो धार होती है उसे लीफ ब्लेड बोलेंगे फिर है वेन्स तो सबको पता है हमारी भी होती है प्लांट्स की भी होती है राइट नस जो बोलते हैं फिर है क्लोरोफिल जो पत्ते ग्रीन दिखते हैं राइट तो ग्रीन क्यों दिखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल 15th वन इज ईडेबल सीड यानी खाने लायक सीड्स जो होते हैं कई सीड्स होते हैं जो ईडेबल नहीं होते राइट खाने लायक नहीं होते फिर लास्ट है जर्मिनेशन के बारे में हम पूरा जो भी है ब्रीफली चैप्टर में सीखेंगे राइट सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक विथ वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड मेक श्योर कि सारे स्पेलिंग करेक्ट हो राइट नाउ open your textbook page number 71 our
Next part is stem. So what is stem? The stem is the main part of the shoot. शूट का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है? स्टेम, राइट. रूट के ऊपर स्टेम खड़ा रहता है और स्टेम के अंदर ही फ्लावर्स, बर्ड, फ्रूट्स एंड लीव्स आने स्टार्ट होते हैं, राइट. तो स्टेम इज अ मेन पार्ट ऑफ द शूट, राइट. तो द स्टेम कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. स्टेम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है. सी, दिस इज द स्ट्रॉन्ग stem and this is so weak stem, right. Trees such as the banyan tree and peepal tree have a thick and strong stem called the trunk. I have already told you, peepal tree है, banyan tree है, बहुत सारे ऐसे tree है, नीम tree है, right. आसोपालव का जो ट्री है, अशोक ट्री, ये सब के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेम, दे आर सो थिक, स्ट्रॉन्ग, जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलेंगे, राइट. इट होल्ड्स द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट. ये जो होते हैं सारे स्टेम जो होते हैं वो क्या करते हैं? ट्री को होल्ड करके रखते हैं. कैसे? स्ट्रेट खड़े रहते हैं ना, स्ट्रेट रखते हैं, और अपराइट ऊपर की तरह ऐसे रखते हैं, राइट. प्लांट्स सच एज grapevine, money plant and bean have weak stem. स्टेप जो होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं किसके? ग्रेपवाइन, फिर है मनी प्लांट. मनी प्लांट सबके घर में है. उसका स्टेम देखो कैसा होगा? एकदम वीक. वो अपराइट खड़ा भी नहीं पाएगा, स्ट्रेट भी नहीं रह पाएगा, राइट. सो such plants either grow along the ground or need support of other plants, wall or sticks. ऐसे जो स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो ग्राउंड में उगते हैं या फिर उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, राइट. सी, यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है. देखो यहाँ बीच में क्या रखा है? एक लकड़ी रखी है जिसके ऊपर ये स्टेम ऐसे गोल गोल होके उगेगा, राइट. इसे मनी प्लांट बोलते हैं, जिसका स्टेम जो होता है बहुत ही वीक होता है, राइट. सो वो सपोर्ट लेके ऊपर वॉल या प्लांट्स या किसी भी स्टिक का सपोर्ट लेके उगते हैं, अपराइट जाते हैं. बाकी वो स्ट्रेट नहीं रह सकते हैं, राइट. बाकी जो पीपल ट्री है, बनियान ट्री है, ये सारे ट्री है जिसकी स्टेम है वो एकदम थिक और स्ट्रॉन्ग है, राइट. स्ट्रॉन्ग स्टेम. तो वो क्या करते हैं? वो एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं ऊपर की तरह. सो दिस इज स्टेम which is the main part of the shoot. Now see the functions of stems, right. So some of the main functions of the stem are given below. First one is it keeps the plant upright and straight. Stem जो है वो क्या करते हैं? प्लांट को अपराइट यानी ऊपर की तरह ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ा रखते हैं, राइट. सेकेंड थिंग इज लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो on the stem. I have already told you guys that stem is a main part. Why? Because leaves, birds, flowers and fruits grow on the stem, right. So third function is the stem carries water, nutrients and food to different parts of the plants. ये जो stem होते हैं वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं? क्या पहुंचाते हैं? दे कैरीज वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स. प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में वो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, वो सब पहुंचाते हैं, राइट. फोर्थ फंक्शन इज स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर थिक बिकॉज दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय दी प्लांट. स्टेम जो है वो क्या करते हैं? स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर थिक. वो थिक होते हैं बिकॉज दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट. क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा फूड हम भी खा ले तो क्या हो जाता है? हमारा पेट मोटा हो जाता है ना, राइट. वैसे ही जो
ट्रीज है वो भी एक्स्ट्रा फूड बना ले तो उनका स्टेम कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, राइट। दिस इज जोक्स अपार्ट बट दिस इज ट्रू, ये इसी तरह होता है, राइट। Now see, some of these stems such as sugarcane, potato and ginger can be eaten by human beings. ऐसे स्टेम है जो हम खाते हैं, राइट। जनरली हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं प्लांट्स के, राइट। या फिर रूट्स नहीं खाते, पर रूट्स में क्या खाता है, बीट रूट्स। अभी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ही सीखा कि रूट्स खाने लायक नहीं होते, पर कई रूट्स हैं जो हम खाते हैं, राइट। वैसे ही स्टेम खाने लायक नहीं होते। रोज़ का स्टेम खा सकते हैं, नो। या फिर किसी भी फ्लावर प्लांट का हम स्टेम खाते हैं, नो। पर कई स्टेम्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो कौन कौन से हैं, दीज आर दी शुगर कैन, राइट, पोटैटो एंड जिंजर, right, can be eaten by human beings. These are the stems which are eatable, right. So stem of some plants are thick because they store extra food prepared by the plants. Some of these stems such as sugarcane, potato and ginger can be eaten by human beings, right. Now see, let's discuss. A neem tree does not need a stake to stand upright, right, whereas a grapevine does. जहाँ पे ग्रेपवाइन को तो ज़रूरत होती है. Why do you think this is so? आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? Because of the stem, right? स्टेम जो है वो नीम ट्री की कैसी है, बहुत ही थिक है, स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रेट रखती है, अपराइट रखती है. बट ग्रेप वाइन की जो स्टेम है वो खुद ही नहीं खड़ी पे हो पा रही, तो वो ग्रेप्स को कैसे स्ट्रेट रख पाएगी? नो, इट्स जस्ट बिकॉज स्टेम ऑफ नीम इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेम ऑफ ग्रेप वाइन इज सो weak, right? Now see, get it right. Some stem grow under the ground. Potato is an underground stem. ऐसे बहुत ही स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड उगते हैं, राइट. पोटैटो इज अ एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, राइट. नाउ our next part is leaf. सबको पता है पत्ता, right? The flat surface of leaf is called the leaf blade. See, the flat surface of the leaf is called leaf blade. ये leaf blade है, दिख रही है आप सबको? ये जो है leaf blade है, धार जो बोलते हैं हम उसे leaf blade. यहाँ पे भी अंदर भी ब्लेड होती है. See, can you see? ये जो स्ट्रेट होती है, ये जो बीच में, ये नहीं, इसे तो वेंस बोलेंगे, राइट. बट ये जो अंदर ये जो धार है, इसे हम ब्लेड बोलेंगे. इफ़ यू लुक एट द लीफ केयरफुली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लाइन्स रनिंग अक्रॉस इट. आप अगर लीफ को अच्छे से जूम करके देखें तो यू कैन सी, यहाँ पे देखो बहुत सारी, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, लाइंस दिख रही है ना. यस, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड वेन्स, राइट. इसे हम क्या बोलेंगे, नसें बोलेंगे, नस बोलेंगे लीफ सॉरी. सो लीफ में अभी तक हमने क्या सीखा, दैट फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड leaf blade, or if you look at the leaf carefully you will find a lot of lines running across it. These lines are called veins, right. Now turn the page number 72, functions of leaves. So some of the main functions of leaves are given below. So our first function is, see, ये functions बहुत ही difficult है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली ये वीडियो 2-3 बार देख लेना, बहुत अच्छे से देखना, याद रखना, ओके. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. दिस इज सो
ईजीएस्ट वन जो हमने बहुत बार सुना है कि प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देयर ओन, राइट। पर लीव्स जो होते हैं वो बनाते हैं फूड, मेक्स फूड फॉर दी प्लांट। Therefore they are also known as the kitchen of the plant। इसीलिए leaves को kitchen of the plant बोलते हैं। Plant is a home, right? If we suppose we are saying plant is a home, तो उसका kitchen कौन होगा? It's leaves. Why? Because leaves make food for the plant, right? Now second function is most leaves appear green because they contain a substance called chlorophyll। मोस्टली लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं, सबको पता है, राइट। लीव्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। पर वो ग्रीन कलर कहाँ से आता है? एंड वाई इट लुक्स सो ग्रीन? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प्स leaves to absorb light। लाइट को एब्जॉर्ब करने में जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लाइट। क्लोरोफिल है तभी जो प्लांट है, लीव्स है, वो अपना खाना बना पाते हैं, राइट। सो वो क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स to green leaves to prepare food for the plant in the presence of air, water and light. Okay, now third function is leaves give out a gas called oxygen, right, which is essential for life। leaves जो है वो give out gas, वो गैस गिव आउट करता है, यानी हमें गैस प्रोवाइड करता है, बाहर फेंकता है। कौन सा गैस है? इट्स ऑक्सीजन। एंड वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, राइट। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। बहुत सारे लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, राइट। उसमें से बहुत सारे लीव्स है, स्पिनच, कैबेज, लेटस, right, and coriander leaves are example of leaves eaten by human beings। that is why we eat leaves, right। तुलसी का पत्ता है, वो जो लीव है वो बहुत ही उपयोगी है। जैसे अभी मुझे कफ हुआ है, राइट, अभी हमें स्नीजेस होती है तो मम्मा क्या करती है? तुलसी के पत्ते खिलाती है, राइट, जिससे क्या होता है? हमारा जो कफ है, हमारी सर्दी ज़ुकाम है, वो जल्दी से फट से उड़ जाए, राइट। तो लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो वो फूड जो स्टोर करते हैं, वो पत्ते हम खाते हैं, उसी से हमें न्यूट्रिएंट्स सारे मिलते हैं, राइट। वो कौन कौन से हैं? कैबेज, लेटिस, स्पिनच, कोरिएंडर हम हर रोज़ खाते हैं। जो नहीं खाते उनकी देखो उनके चश्मे स्पेक्स आ जाते हैं, चश्मे आ जाते हैं, राइट। तो ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रीन जो होते हैं वेजिटेबल्स, उसके अंदर दे प्रिजर्व द फूड, राइट। यहाँ पे लिखा है ना, लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड, स्टोर करते हैं फूड। अब वो फूड बहुत ही क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। जब वो हम खाते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो एकदम मस्त बनती है, हम हेल्दी हो जाते हैं, राइट। सो ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड काइंड ऑफ लीव्स सच एज स्पिनच, cabbage, lettuce and coriander, right। now in homework you have to do, let's remember। see यहाँ पे क्या करना है वो मैं आप लोग को झट से बता देती हूँ। label the parts of the plants correctly, then color the part that grows under the ground in brown and above the ground is green। आपको क्या करना है? फिर उसको कलर भी करना है, पर कलर कौन कौन से करने हैं? सी जो ग्राउंड के ऊपर है ना, उसे हमें ग्रीन कलर से पूरा करना है, और जो ग्राउंड के नीचे है उसे हमें ब्राउन कलर से पूरा कलर करना है। ओके,
So what kind of root does this plant have? This plant have taproot, right? And you have to label this all these part: leaves, fruit, stem, root, flower and bud. And you have to color green. जो ग्रीन कलर करना है वो कहाँ करना है? ग्राउंड के ऊपर के हिस्से में, ग्राउंड के नीचे के हिस्से में, यहाँ से हमें ब्राउन कलर करना है. ओके, सो इन होमवर्क यू हैव टू डू लेट्स रिमेंबर एंड हार्ड वर्ड्स. ओके, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय एवरीवन.